عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ہاشمی گرلز پی جی کالج میں امروہہ میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کافی تعداد میں اہل علاقہ موجود ہیں، شہر کی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ سیاسی لوگ بھی یہاں پر ہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کی 68 سال ہو جانے کے بعد آزادی کے، اس کے باوجود آج تک مسلمان اتنا پچھڑا ہوا کیوں ہے، کیوں مکھیہ دھارا میں ابھی تک نہیں آ پایا ہے۔ جب بھی الیکشن آتے ہیں مسلم ووٹ بینک کی راجنیتی کی جاتی ہے، سیاست کی جاتی ہے، ووٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو کہ کیوں مسلمانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر الیکشن میں وعدہ کیا جاتا ہے ریزرویشن کا، لیکن اس وعدے کو آج تک پورا نہیں کیا گیا۔ انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں۔ समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है। عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ہاشمی گرلز پی جی کالج میں امروہہ میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کافی تعداد میں اہل علاقہ موجود ہیں، شہر کی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ سیاسی لوگ بھی یہاں پر ہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کی 68 سال ہو جانے کے بعد آزادی کے، اس کے باوجود آج تک مسلمان اتنا پچھڑا ہوا کیوں ہے، کیوں مکھیہ دھارا میں ابھی تک نہیں آ پایا ہے۔ جب بھی الیکشن آتے ہیں مسلم ووٹ بینک کی راجنیتی کی جاتی ہے، سیاست کی جاتی ہے، ووٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو کہ کیوں مسلمانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر الیکشن میں وعدہ کیا جاتا ہے ریزرویشن کا، لیکن اس وعدے کو آج تک پورا نہیں کیا گیا۔ انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں۔ کس طرح کے مسائل ہیں علاقے میں؟ یہ آج کا جو ٹاپک ہے خاص طور پر جو آپ نے اٹھایا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پر چرچا ہونے کے موقع بھی کم ملتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ آزادی سے لے کے اب تک مسلمانوں کی جو پستہ حالی ہے، یا جو شروع میں مسلمان جس مقام پر تھا دھیرے دھیرے جو ڈاؤن فال ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی جس میں مسلمان صرف 1.5% کی سرکاری نوکریوں میں ہیں، جبکہ اگر 15 یا 20% ہم یہاں پر موجود ہیں، تو حصہ داری کے اعتبار سے مسلمانوں کو وہ ان کا حق نہیں مل پایا۔ اور تعلیمی اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی 2.5% پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس میں کیٹیگری جو پڑھنے کی ہے وہ اس اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ تو ایسے میں یقینی طور پر یہ لمحہ فکر ہے کہ مسلمان جو ترقی ملنی چاہیے تھی وہ ترقی اس کو نہیں ملی۔ اس میں کئی وجہ ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جن لوگوں نے زیادہ ذمہ داری یہاں پر اس ملک میں نبھائی ہے حکومت کے اعتبار سے، انہوں نے جو مینیفیسٹو رکھے مسلمانوں کے لیے، جو باتیں رکھیں، ان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہ ہو سکا، یا اگر وہ اسکیمیں بنائی گئی ہیں تو مسلم عوام تک وہ پہنچی نہیں ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ یہ مان سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا آزادی کے اندر جس طرح کا یوگدان رہا ہے، جو ان کی خدمت رہی ہے، جو ان کا حصہ رہا ہے، بڑھ چڑھ کا حصہ لیا ہے، علماء اکرام کی جو قربانیاں اس ملک کو آزاد کرنے میں رہی ہیں، یقینی طور پر اس کے مطابق بالکل بھی کچھ نہیں۔ جی بالکل، واجب حق مسلمانوں کو نہیں مل پایا۔ کیا وجہ لگتی ہے؟ کہیں ہم لوگ سیاسی طور پر کمزور ہیں، ہماری سیاسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے؟ سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے، اور مسلمانوں کا جو ہے جو سہولتیں ملتی ہیں وہ دوسرے طبقے کو دے جاتی ہیں، الپ سنکھیک کے مسلمانوں کے نام پہ ملتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو دے دی جاتی ہیں۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو وہ نہیں مل سکا جو مل جانا چاہیے تھا، جبکہ آزادی حاصل کرنے میں ہم نے اتنی ہی قربانیاں دی ہیں جتنی دوسرے لوگوں نے دی ہیں۔ اس کی خاص وجہ میرے عمر بھر کا تجربہ یہ ہے کہ ہم مسلمان میں آپس میں اتفاق نہیں، ہم سیٹس کے لالچ میں، پوسٹوں کے لالچ میں مختلف جماعتوں میں اور گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ کہیں سے ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہم ادھر کو چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جو بنیادی معاملات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، وہ کہیں پورے نہیں ہو پاتی۔ ضرورت یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے آپ پیروں پر کھڑے ہوں، اپنی ایجوکیشن کو سنبھالیں، اپنے معاشیات کو سنبھالیں، اور اتفاق کر کے کسی ایک قائد کو تلاش کریں، اس کے پیچھے رہ کر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہ ہم لوگ آپس میں متحد نہیں ہیں اور ہماری ایک آواز جو ہے نہیں بن پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پچھڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آزادی سے اور آج تک ہندوستان میں جو مسلمانوں کا کوئی بھی پارٹی ہو، انہوں نے ساری پارٹیوں نے مسلمانوں کو استعمال کیا ہے۔ اس کا حق صرف الیکشن کے وقت اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کا حق اسے نہیں مل پاتا۔
जैसे भारत सरकार अक़लियतों के लिए इतने बड़े बड़े ऐलान कर रही है और पैसा भी दे रही है, लेकिन मुख्तलिफ सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ जहाँ भी हो, उसका हक मुसलमानों को नहीं मिल रहा। एक वजह ये भी है कि हमारे अंदर तालीम की बहुत बड़ी कमी है, खास करके हमारी ख्वातीनों में तालीम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसे लोग जैसे यहाँ पर हमारी कॉलेज है हाशमी गर्ल्स कॉलेज, ऐसे यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से ख्वातीन के लिए ऐसे कॉलेज नहीं है जैसा ये है। तो हमारी ये मांग है सारी सरकार, पहले हम मुसलमान की हैसियत से हम किसी पार्टी में न जाकर के पहले मिल्लत के मसाइल को, और उसके लिए हमें एक लीडरशिप की बहुत सख्त जरूरत है। जिस लीडरशिप की वजह से हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आता है मुख्तलिफ, उसमें पार्टियों में बह जाते हैं, जिससे हमारा मिल्लत के मसाइल हल नहीं होते। बिल्कुल लीडरशिप की बात की इन्होंने। आखिर लीडरशिप क्यों नहीं बन पा रही है मुसलमानों में? किसी एक को अपना नेता मानने को तैयार क्यों नहीं है? अगर कोई खड़ा होता है तो उसमें 50 बुराइयां निकालते हैं, और अगर गैर मुस्लिम है वो चाहे उसके अंदर कितनी बुराइयां हों उसके पीछे खड़ा होता है। कौम का शिराजा बिखरा हुआ है और मुत्तहिद नहीं है। हर जगह हर फिरका कौम बिरादरी के रूप में बटे रहते हैं। मुसलमानों की तरक्की इसलिए नहीं हो पाती। खास तौर से अभी देखा गया कि रिजर्वेशन की बात आती है तो मुल्क के आइन में से आर्टिकल 340 और 41 के अंदर प्रोवाइड किया गया है कि जो एससी लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जो मुसलमान एससी के कैटेगरी में आते हैं जैसे धोबी और चमड़े का काम करने वाले, उन मुसलमानों को उससे वंचित रखा गया। अगर उनको उसमें शामिल किया जाएगा, इस सेक्शन में आर्टिकल में अमेंडमेंट किया जाए तो एससी की कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मुसलमानों को भी मिलना चाहिए वो भी मिल सकता। बिल्कुल इनका ये कहना है कि जाट को जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन मुसलमानों से वादा किया उसके बावजूद उसको पूरा नहीं किया गया। तो आखिर क्या वजह है हम लोग अपनी आवाज नहीं रख पा रहे हैं और जो मसाइल हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं? ये जैसा अभी बताया कि आपने ये प्रोग्राम जो शुरू किया है मुस्लिम मसाइल का, ये एक अपने आप के अंदर अहमियत रखता है। और आपने जगह भी ऐसी चुनी है कि अमरोहा शहर, जहां से मैं समझता हूं इस अमरोहा शहर के अंदर सबसे पहली आवाज मुकम्मल आजादी की अमरोहा के अंदर अमरोहा जामा मस्जिद में जमीयत उलमा हिंद ने उठाई 1937 में। लेकिन आज इसी तरीके से जैसे अमरोहा पिछड़ा हुआ है, आज भी कोई तालीमी मामले में कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा हमें इदारा नहीं दिया गया जिससे मुस्लिम मसाइल के हल होते। जब तक मुस्लिम मसाइल के हल के लिए तमाम सरकारें जो हैं हमें अमली मामलात नहीं करेंगी, सिवाय चुनाव के मैदान में आने के बाद हमें लालच देकर, हमें बहकाकर, हमारा वोट हासिल करने के बाद कोई भी सरकार हो वो हमें फिर उसके बाद मौका नहीं देती। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि यहाँ पर रिजर्वेशन का भी वादा किया गया, मुसलमानों को तमाम सहूलत देने का वादा किया गया, लेकिन मुसलमानों के नाम पे आज भी कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर भी अभी पीसीएस ऑफिसर्स की बात आई, वही लोग। बिल्कुल इनका ये कहना है कि कोई भी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या उत्तर प्रदेश हुकूमत की बात करें या किसी और स्टेट की बात करें, कहीं पर भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी किसी तरह की जो मसाइल हैं उन पर कोई किसी तरह का अमल नहीं है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी सांप सीढ़ी की तरह है चौधरी, सीढ़ी चढ़ा तो मौज, सांप डसा तो मौत। इस एक आदमी ने मेरी पूरी कहानी खत्म कर दी। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाशमी गर्ल्स पीजी कॉलेज अमरोहा में। बात कर रहे हैं अहले इलाका से कि किस तरह के मसाइल हैं। आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है, इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात चल रही है कि हमारी अपनी कोई लीडरशिप नहीं है, इलेक्शन आता है, वादे किए जाते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता। तो अब क्या करना चाहिए? अब फिर इलेक्शन सर पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आलमी सहारा समय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बात ये मौजूद चुना है। दूसरी बात यह कि हम हिंदुस्तान में जो रहते हैं तो हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार।
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ریزرویشن نہیں ملا, ہمیں یہ چیز نہیں پوری ہوئی, ہم سے پارٹی وعدہ کرتی ہیں اور بات کچھ چلی جاتی ہیں. اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس میں ذمہ دار اور قصوروار ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے. تعلیم اگر ہمارے پاس ہوتی اور تعلیم اگر ہم حاصل کیے ہوئے ہوتے تو آج سے ابھی 1.5 سال پہلے جو ایک مقامی پارٹی نے, علاقائی پارٹی نے ہمیں 18% کے نام سے بیوقوف بنایا اور مسلمانوں کو ٹھگا, جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ 18% کوئی بھی ودھان سبھا سے یہ پاس ہو کر چلا جائے. تو اس وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے, اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ, ہمیں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہمیں آج یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے, کہ ووٹ وہ تلوار ہے اور وہ ہتھیار ہے کہ اس سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈال کر کیا کریں گے, ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور ایسے سیکولر آدمی کو چننا چاہیے, خواہ وہ کسی طبقے سے بھی آتا ہو, جو آتنکواد کے اور اس کے کمیونزم کے خلاف ہو اور ہندوستان کی ترقی کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے بات کرے. بالکل, بہت بڑی بات کہی ہے کہ ہمیں خود سیاسی طور پر بیدار ہونا ہوگا, اور اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ایجوکیشن کی. ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ ہیں. کس طرح کے مسائل آپ دیکھنے میں نظر آتا ہے ایز اے خاتون آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ ایک بہت اچھا آپ نے اٹھایا ہے. سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ووٹ مسلمانوں کا کتنا اہمیت رکھتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے ووٹ کی اہمیت ہمیں ہی سمجھنا ہوگی کہ ہم پورا سسٹم بدل سکتے ہیں اپنے ووٹ سے. 30 سال پہلے دہلی میں دنگے ہوئے سکھ ویرودھی, اور اس کی SIT ایک الپ مت کی سرکار بنا دیتی ہے, اور یہاں 150 دنگے ہو چکے اور آج تک SIT بنانے کا کام نہیں کیا گیا. ایک یہ جو تکلیف دہ پہلو ہے اس سرکار کا اور جو تمام سیاسی پارٹی. دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان پہلے کانگریسی مسلمان, بھاجپائی مسلمان, سماجوادی مسلمان, بہوجن سماج پارٹی کے مسلمان, سرکاری مسلمان, ابھی مسلمان ہی طے نہیں کر پائے کہ وہ کون سے مسلمان ہیں. اگر مومن مسلمان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں. ایک اہم مدعا میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سپریم کورٹ آف انڈیا سے اپنے تعلیمی ادارے چلانے کے لیے 11 ججوں کی بینچ نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے ادارے اپنی مرضی سے قائم کریں, ان میں اپنے مرضی سے اپوائنٹمنٹ کریں, لیکن اس سرٹیفکیٹ کو ماننے کے لیے نہ تو یوپی گورنمنٹ تیار ہے, نیشنل کمیشن کا یوپی سرٹیفکیٹ ماننے کو گورنمنٹ تیار ہے, اور جتنے نئے ادارے اقلیتی ہے, یہ BTC B.Ed کھل رہے ہیں, سب کو ہائی کورٹ جانا پڑ رہا ہے. تو یہ کون سا قانون ہے, کس ملک کی دفعہ میں اور آئین میں لکھا ہے کہ آپ قانون کی کتاب میں تو وہ قانون دکھاتے ہیں لیکن جب عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے. بالکل, آئینی حق پوری طرح سے نہیں مل پا رہا ہے جو آئین میں حق دیا گیا ہے. جی, آج میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مسلمان ہے وہ تعلیم کے چھیتر میں تعلیم میں جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. سب سے پہلے ہمیں جو ہے تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے, اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم تعلیم میں پیچھے ہیں تو ہم لوگوں کو آرکشن کی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں کو آرکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک جاٹ جو برادری ہے, چھوٹی سی برادری, اس نے جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ بھی کافی ہے اور اچھی ایجوکیشن بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی, اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو جو ہے آرکشن ملا, اور ہم لوگ جو ہیں وہ یونائٹ نہیں ہیں. بالکل, ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں کہ جاٹ برادری کو ریزرویشن مل گیا لیکن مسلمس کو ریزرویشن نہیں مل پایا. دراصل بنیادی چیز ہماری تعلیم کی کمی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی پارٹیاں, یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ مان لیجئے کہ یہ مسلم امیدوار جو اتنے کھڑے ہوتے ہیں ہر پارٹی کا, پھر جو پارٹیاں اب ہیں پھر دوسرے لوگ بھی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ووٹ اس کے کاٹ لیے. سیکولر ووٹ کی جو تقسیم ہے یہاں سب سے مضر وہ چیز ہے. آج تک مسلمان یہ طے نہیں کر پایا کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ کریں اور کس کو نہ کریں. مختلف بٹے میں, اور جو فرقہ پرست پارٹیاں ہیں وہ اپنے پیسے سے ان نمائندوں کو, مسلم نمائندوں کو لڑاتی ہیں. بنیادی بات یہ ہے ہندوستان میں ہر شخص اپنے جو آیا اب قوم برادری, بالکل سیکولر ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو فرقہ پرست جماعت کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت جاتا ہے. تو کس طرح سے اس کو روکا جائے؟ اس کو لیڈرشپ سے ہی روکا جا سکتا ہے. جب اب تک ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے تو اس لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم سچر کمیٹی کی رپورٹ کے لیے 2 بار راہل گاندھی جی سے ملے, جا کے ان سے کہا
कि साहब इसे लागू कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा बस नेट पे देखिए, कह के टाल दी। बिल्कुल, सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें, सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात हैं उनको लेकर के रहमान खान का ये कहना है कि 72 में से 68 सिफारिशात को नाफिज कर दिया गया है। क्या इस इलाके में कोई सच्चर कमेटी की सिफारिशात नाफिज होती हुई नजर आती है? जी नहीं, मैं बुनियादी बात कुछ कह दूं। सन 47 में मुल्क आजाद हो गया और ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान गुलाम हो गया। ये बात सच्चर कमेटी जो आप बता रहे हैं उसने साबित कर दी। जो हमारा पास, मुसलमानों के पास आजादी के वक्त जो हमारा असासा था, वो आज ये महसूस होता है कि वो हमारा खुद का असासा जो हुकूमत हिंद हमें देती, वो तो हमें कुछ मिला नहीं। जो हमारा असासा था वो भी हमसे खत्म कर दिया, हमसे ले लिया गया। औकाफ की जमीनें थी वो हमारी हथिया ली गई, उस पर तमाम कब्जे हो गए। हमारे जो तालीमी इदारे थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो हमारे इदारे थे उनके अक़लियती किरदार भी खत्म कर दिए गए, जिसका जामिया मिलिया का तो अभी अदालत के जरिए बहाल हुआ है, बाकी अभी तक वो। मेरा अपना कहना यह है कि जो सियासी जमातें हैं, हमें पार्लियामेंट का टिकट चाहिए, हमें एमएलए का टिकट चाहिए, हमें कैबिनेट मंत्रालय चाहिए, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का हल इस जरिए से होगा कि मुसलमानों का एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए हिंदुस्तान में, और वो हुकूमत से या पार्टियों से वो बार्गेनिंग करे मुस्लिम मफादात के लिए कि हमारा ये वर्किंग एजेंडा है, मुसलमानों की ये डिमांड्स हैं, ये हमारी आप पूरी करेंगे। चाहे वो इवन भाजपा हो, वो अगर हमारी डिमांड्स पूरी करती है तो मुसलमानों को उस पार्टी को वोट करना चाहिए। ये मेरी नजर में इस मसले का हल है। तो देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि इनको कोई भी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमान को सिर्फ तेजपात की पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिरयानी बनाए, जायका लिया और फेंक दिया बाहर को आके। सिर्फ इसीलिए चाहिए हर पार्टी को, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पार्टी मुसलमान के हक में बात करे उसे हमें वोट देना चाहिए। मुसलमान का मामला तो यह है कि अल्लामा इकबाल अब से 50-60 साल पहले कह चुके हैं कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मसला हिंदुस्तान में मुसलमान के लिए आज़ादी से लेकर आज तक किसी सरकार ने, कहीं से भी आई हो, वो प्रदेश के हिसाब से हो, सूबे के एतबार से हो या पूरे हिंदुस्तान के एतबार से हो, मुसलमानों के लिए यहाँ की सरकार, किसी सरकार ने भी आज तक कुछ नहीं सोचा है और आगे भी न सोचने की उनसे यही उम्मीदें की जा सकती हैं। मैं दो बातें कहूँगा। सबसे बड़ी मुसलमानों में एक तो एजुकेशन की कमी है ही, हमें एजुकेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, मुत्तहिद होना चाहिए। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हमारा कोई भी लीडर नहीं बन पाएगा, और जब लीडर नहीं है हमारा तो हम जाहिर सी बात है कमज़ोर हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपना मुसलमान सब मुत्तहिद होकर और एजुकेशन में पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। खास करके लड़कियां, जैसे हाशमी साहब ने अपने कॉलेज ये बनाया है, इसमें बहुत सारी लड़कियां मुसलमानों फैज़ उठा रही हैं। इस तरीके के बहुत सारे कॉलेज खुलने चाहिए, डिग्री कॉलेज, और उसमें तमाम लड़कियां जो मुसलमान, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो मतलब नहीं पढ़ा पाते हैं लड़कियों को, लेकिन मैं उनसे एक दरखास्त करूंगा कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। बिल्कुल, एजुकेशन खासतौर से जो लड़कियों की एजुकेशन है उसको लेकर ये लोग ये बात। देखिए, ऐसा है कि मैं एजुकेशन के मामले में ये मानता हूँ कि एजुकेशन जो है तो वो बार बार हमारे सामने एक बात आ रही है कि एजुकेशन की हमारे यहाँ कमी है, लेकिन ये कमी हमारी नहीं है, हमारे समाज की नहीं है, मुस्लिम समाज इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैं इसका जिम्मेदार सीधा इस हिंदुस्तान की सरकार को, स्टेट सरकार को मानता हूँ। इसलिए क्योंकि आज एजुकेशन जो है इतनी महंगी कर दी गई है कि हम चाहकर भी पढ़ा नहीं सकते। हम कहते तो हैं इस बात को कि हमें एजुकेशन चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन जहां हम उसके पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहां हमें इतना महंगी एजुकेशन मिलती है कि हम पीछे को हमें मजबूर होना पड़ता है। मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ भ्रष्टाचार मानता हूँ कि हम जहां बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वहां उसके साथ साथ हमें भ्रष्टाचार का भी मुकाबला करना पड़ता है। एक किसी टीचर्स की सैलरी जो है तो वो कम से कम डिग्री कॉलेज को देख लें या प्राइमरी स्कूल को देखें तो उसके अंदर सैलरी तो बढ़ाने के लिए धरने, प्रदर्शन और विरोध सरकारों के सामने आता है और सरकारें उसके दबाव में काम करती हैं, लेकिन कभी भी वो गार्जियन से या उन बच्चों से नहीं पूछते कि वो किस तरीके से उसको पढ़ना है, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। और जबकि वो कॉलेजों में जाने के बाद
वो अपनी सीट पर बैठने के बाद कभी भी बच्चे को एजुकेशन नहीं देने का काम नहीं कर रहा है। इसका सीधा जिम्मेदार जो है वो इस देश का भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो एजुकेशन के ऊपर सीधा हमला होगा। देखिए, आज़ादी के बाद आज तक मुसलमान को शक की निगाह से देखा जाता है, उससे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आज तक के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मुसलमान ने जो काम भी करे हैं वो वतन परस्ती के करे हैं, और कोई भी मुसलमान कभी किसी गद्दारी में, किसी जासूसी में आज तक नहीं पकड़ा गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन पकड़े गए, क्या क्या नाम थे। मुसलमान ने किसी बड़े लीडर का कत्ल नहीं किया है। देश के अंदर आज़ादी के बाद से आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मुसलमान को पीछे करने के लिए हमारे जो देश के लीडरान हैं वो तिफरका डालते हैं, वो अंग्रेज़ों के पैंट पे काम करते हैं कि फूट डालो और राज करो। लेकिन मुसलमान को आज टाइम ऐसा आ गया है कि समझना चाहिए कि इताहत क्या चीज़ है, और अपने इताहत की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई की तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो तालीमी लिहाज से मुसलमानों को ऊपर उठना चाहिए, आपस में इत्तेफाक पैदा करना चाहिए, एक सियासी लीडरशिप देनी चाहिए। सियासी लीडरशिप की जो कमी है उसी की वजह से जो मसाइल हैं उनका हल नहीं हो पा रहा है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज़ में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। कर चुम्मा लेके ही जान ले लेगा क्या जालिम। ये तो चुम्मे का सिकुल बन गया। क्रिस 2 के बाद किस 2। तेरा दामाद तो हो गया पूरा इमरान हाशमी हाशमी हाशमी। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं अमरोहा के हाशमी गर्ल्स पीजी कॉलेज में। हमारे साथ अहल इलाका हैं, बात कर रहे हैं जो मसाइल हैं मुसलमानों के, उनका इजाला क्यों नहीं हो पा रहा है। अब प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इन सारी परेशानियों का हल क्या है। आखिर मुसलमान मुत्तहिद क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहा है, क्यों सियासी बेदारी पैदा नहीं हो रही है। देखिए, हमारे इस्तेसाल की सबसे बड़ी वजह और अहम वजह, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा कि हमारी आपस में इत्तेहाद न होना। लोग कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा रहबर नहीं है, तो रहबर का इंतखाब भी हम लोगों को ही करना है, कोई दूसरा तो आकर रहबर नहीं चुनेगा। हम लोगों, जब हम आपस में इत्तेहाद नहीं है तो हम रहबर का इंतखाब, मैं समझता हूँ, नहीं कर सकते। लिहाजा बस सबसे अहम बात यही है कि हमारा इत्तेहाद मजबूत हो। हम जो चाहें तो हुकूमत भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि जी ऐसा है कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो तालीम की है मुसलमानों में, दूसरी बात यूनिटी की है, तीसरी बात जो है सबसे बड़ी वो कायद की है। आज तक 68 साल से कोई हमारा ऐसा नेता नहीं हुआ जिसके हम तमाम मुसलमान उसके पीछे होते। एक इसके अलावा मैं और बिल्कुल सबसे अलग बात बताता हूँ कि जितने भी हुकूमतों में रहे हैं मुसलमान, किसी भी पार्टी में रहे हैं, उन्होंने कभी कोई मुसलमानों के लिए आवाज पार्लियामेंट में या कहीं नहीं उठाई। दूसरी पार्टियों ने आवाज उठाई है, और इसके लिए अगर मैं कहता हूँ, मेरा कोई कांग्रेस से भी ऐसा ताल्लुक नहीं है कि के रहमान ने 2-3 काम तो ये ऐसे किए हैं, एक वक्फ बोर्ड का किया है, दूसरे 3 यूनिवर्सिटियों को मंजूर कराया है। तो अगर ऐसे नेता हो जाएं, वो 1 ही साल से ये रहे, मिनिस्टर रहे, बाकी और इतने हैं, बहुत से हैं, मैं नाम नहीं ले जाता किसी का, जो 10-10 साल और 15-15 साल रहे, लेकिन मुसलमानों के नाम से कभी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई है, कभी नहीं बोले हैं, कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी कमी लीडरशिप की है कि हम मौजे हवादिस से खबरदार नहीं हैं, हम मौजे हवादिस से खबरदार नहीं हैं, ये पार उतरने के तो आसार नहीं है। हम मौजे हवादिस से खबरदार नहीं हैं, ये पार उतरने के तो आसार नहीं है। और जैसा मेरे भाई ने कहा कि हल क्या है, वो उसके लिए भी एक शेर था पेश कर रहा हूँ कि मुत्तहिद होके रहो। हाशमी साहब, मुत्तहिद होके रहो और मुत्तहिद होके चलो, मुत्तहिद होके रहो और मुत्तहिद होके चलो। इंतखाबी दौर है, फिरते हैं बलवाई बहुत। मुत्तहिद होके रहो और मुत्तहिद होके चलो, इंतखाबी दौर है, फिरते हैं बलवाई बहुत।
बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि इलेक्शन के वक्त हम लोग आते हैं, बरगलाते हैं नेता हमें, हम उनके पीछे चल जाते हैं। सबसे ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है या हमारी सोशल एक्टिविटीज सोसाइटीज नहीं है। हमारे दो बड़े लीडर हैं, उलमा इकराम हैं, जिनकी तंजीमें चलती हैं, लेकिन एक अपनी अलग डपली बजाता है, एक अपनी अलग डपली बजाता है। जब तक हमारे कायद मुत्तहिद नहीं होंगे तो कौम को भी मुत्तहिद होने का दर्स नहीं दे सकते। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आलमी सहारा ने इस वक्त हमारी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं हुकूमत से यही कहना चाहूंगा कि सौकेला रवैया अख्तियार न करे, हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल भेदभाव न करे। क्यों कि हिंदू और मुसलमान के अंदर खून एक। हम अब बिल्कुल भेदभाव वाली बात न करें। हमारा जो हक है वो हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमेशा हक हमें। अगर हक नहीं मिला तो हम अपने हक के लिए हम अपने आप को मुत्तहिद होकर इत्तेहाद करके हम खड़े होने के लिए हम लोग हमेशा तैयार और रहेंगे। बस मैं इस मजमे के सामने दो ही बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हमारे अंदर तालीम की जो कमी है, वो तालीम सब लोग तय करके उठें कि हमें हर बच्चे को तालीम हासिल करानी है। दूसरी बात यह है कि हमें मुसलमानों को मुत्तहिद रहना है, कहीं ज़ातों में, बिरादरियों में, आपस में इसमें ना भटके, सब एक प्लेटफार्म पे रहें, तो इंशाअल्लाह ताला सारी कामयाबी मुसलमानों के कदम चूमेगी। बिल्कुल, दो बातें इन्होंने कहीं एजुकेशन को लेकर और मुत्तहिद होने को लेकर। जी, अभी सवाल आया था कि मुसलमानों की रहबरी कैसे हो, तो रहबरी के लिए 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुआ और हमारे रहबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मुल्क के आलिमों की है। इस मुल्क के आलिम मुत्तहिद होकर कुरान पाक पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलें, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी और कौम मुत्तहिद होगी, तरक्की करेगी। बिल्कुल। क्या कहना है, क्या इन सब चीजों का हल है? क्यों हमारी जो है लीडरशिप? देखिए, हम पहले आपके इसके सहारा उसके माध्यम से हम हिंदुस्तान की अदलिया को भी ये बताना चाहते हैं। केरला में हमें रिजर्वेशन हुआ, फौरन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया और कहा मजहब के आधार पे आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्यों दे रहा हो हिंदुओं को? हिंदू जो एससी के लोग हैं उससे भी कहीं ज्यादा मुसलमान गरीब हैं। आपने सबसे पहले हिंदुस्तान में हिंदुओं को दिया, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं? पहले आप मजहब का हिंदुओं के रिजर्वेशन बंद करिए, फिर उसके बाद ये तय करिए कि मजहब के आधार पे अगर खालिस आप हिंदुओं को रिजर्वेशन दे सकते हैं तो मुसलमान को क्यों नहीं दे सकते मजहब के आधार पे? दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है, जो दिल्ली से जैसे के रहमान साहब ने बहुत पैसा दिया, इसमें कोई मुबालका नहीं है, और उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों को। लेकिन मैं आज भी बात बता रहा हूं, मैं आज अल्पसंख्यक अधिकारी के पास गया, यहाँ पर 1300 लड़कियों का 4000 रुपए महीना जो आया हुआ है, उनका 4000 रुपए इसको वो आई है फीस का, एक भी देने को तैयार नहीं है। और बदकिस्मती हमारी यह है कि इस जिले के अंदर हमारी नुमाइंदे मुसलमान 3 मंत्री हैं और कोई कहने को तैयार नहीं बच्चियों की ये फीस क्यों नहीं दी जा रही। तो हमारी सही बात है, बेशक हमारी लीडरशिप में करिए। जिस दिन हमारी लीडरशिप मजबूत हो जाएगी, हिंदुस्तान को आप मुट्ठी में कर लेंगे। पहले हमें लीडर बिल्कुल, अफसरान कहीं ना कहीं जो स्कीम्स हैं उनको लागू करने में पूरी तरह से नाकाम है, और उसके अलावा कहीं ना कहीं भेदभाव भी देखने में नजर आता है, जिसकी वजह से जो हुकूमत के जरिए जो स्कीम्स आती हैं, जो वजीफे आते हैं, वो जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए सभी ने बात की कि आखिर क्या वजह है, किन वजहों से मुसलमान आजादी के 68 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक पिछड़ा हुआ है और ज्यादा पिछड़ता चला जा रहा है आजादी के बाद। तो इन सारी चीजों का क्या वजह है और इनके मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आज बस इतना ही। खुदा हाफिज।